Hello kids, welcome back. Welcome back to your computer classes. So kids, in our last video we were doing personalization of window. That means there we were reading how we can personalize our Windows 7 desktop, and in that we have learned several things. We have the last thing that we have discussed is setting screensaver. The last thing that we have discussed is setting screensaver. Okay, now the screensaver is the moving picture. Screensaver is the moving picture that appears automatically on your computer if you do not use your computer for a period of time. So what is screensaver? Screensaver is the moving picture that appears automatically on our computer if we don't use our computer for a period of time. To bring back your desktop again, just move your cursor or press any key from the keyboard. तो अगर हमारे स्क्रीन पे स्क्रीन सेवर है और हमें वापस से अपनी स्क्रीन चाहिए तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें बस अपने स्क्रीन को कर्सर को मूव करना होगा और वापस से हमारा स्क्रीन आ जाएगा. तो नाउ देयर आर सम स्टेप्स हाउ वी कैन चेंज द स्क्रीन सेवर इन विंडोज 7. Now open the personalization window. Click on screensaver. The screensaver setting dialog box appears. Click on the down arrow of the screensaver. Click on the screensaver you want to use. Okay. Now a preview of the screensavers appear. Okay. After this move the mouse pointer. After this move the mouse pointer or press a key to stop the preview. Now click on वेट अप. देखो यहाँ पे हमने कल आपको दिखाया था वेट अप एंड डाउन एरो बटन टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ मिनट्स computer idle time after which the screensavers appear. Okay. Click on OK. The screensaver appears after your computer is idle for the number of minutes you have specified in स्टेप 5. जितना टाइम हमने स्टेप 5 में बताया होगा उतने टाइम के लिए हमारा क्या हो जाना है, स्क्रीन सेवर सेट रहेगा. ओके, तो चलो करके देखें. कल हमने ये चीज की थी. चलो लेट अस डू इट अगेन. तो आई विल गो ऑन सर्च and here I will search screensaver, change screensaver. ना देखो अभी मेरा करंट स्क्रीन सेवर जो है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है. मेरा करंट स्क्रीन सेवर क्या है, बबल्स. देख रहे हो हमारी ये. अच्छा रुको मैं अभी अच्छे से दिखाती हूँ आपको. देखो ये बॉक्स बिल्कुल वैसा ही है ना. These both the boxes are similar now. Now see, अभी मेरा करंट स्क्रीन सेवर क्या है, ये बबल्स है. ठीक है, चलो प्रीव्यू लेके देखते हैं. देखा, दिस इज स्क्रीन सेवर. अच्छा लग रहा है ना, दिस इज लुकिंग गुड ना. तो अगर अब मैं अपना अब मुझे अगर इसको हटाना है, इफ आई वांट टू रिमूव दिस प्रीव्यू, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मूव माय कर्सर.
तो इफ आई विल मूव माई कर्सर देन दैट मीन्स कि मुझे अब प्रीव्यू हटाना है। देखो मूव करते ही व्हाट हैपन, हमारा स्क्रीन सेवर हट गया। अब चलो बबल्स की जगह हम कुछ और सेट कर लें, रिबन्स करके देखें। चलो प्रीव्यू करके देखते हैं। देखो ऐसा कुछ दिखेगा, अगर हम रिबन्स करते हैं तो हमारी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी। Okay, now after ribbon let us try photos preview. So this will appear, or mystify. What will happen if we will do the mystify preview? See, something like this will appear. देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज मिस्टिफाई। Now kids, we have done mystify also and bubbles. So bubbles 3D text, what happened in 3D text? See, if I click on preview, तो देखो इस तरह से विंडोज 10 इस तरह से क्या आएगा हमारी स्क्रीन पे, हमारा स्क्रीन सेवर एक 3D टेक्स्ट की तरह आएगा। Okay, now let us move ahead. Next is, so we have seen how we can change the screensaver. Okay, this we have done. Now changing the color scheme. This also we have discussed yesterday, that how we can change the color scheme. Okay, now changing the color scheme. You can personalize window by choosing a different color scheme. You can change, you can personalize windows by choosing a different color scheme. Windows apply color scheme to the windows border, taskbar and start menu. तो देखो जब भी मैं कलर चेंज करूंगी तो हमारा टास्क बार, टाइटल बार, स्टार्ट मेनू ये सारे क्या हो जाएंगे, दिस ऑल विल गेट चेंज। नाउ हाउ वी कैन चेंज द कलर स्कीम? To change the color scheme, open the personalization window, click on window color, the window color and appearance window appears. Now click on the color you want to use. Now click on the color you want to use. Now windows immediately change the color of the windows border. Window will immediately change the color of windows border. To set the color intensity, click and drag the color intensity slider. Windows change the transparency and intensity of the windows border. Click on save change. Chalo, let us see. Let me search first color intensity. Okay, so we have to adjust color filter. Is this? Okay, let us see. So this is adjust color filter. Is this? No. We don't need this. We have to go back to background.
So kids, now we have to change the color. Now we have to change the color of our computer desktop. ठीक है, अब हमें क्या करना है? We have to change the color. So how we will change the color? So we were searching for the colors. So see here, just below the background, you can see color is written there. Okay, now see colors. Okay, so I'll click on color, and from here I can choose my color, whether I want light, dark or custom. So in case if I click on custom, so then choose your default window mode. So like this we can choose. So, and if I click it, if I keep it light, ठीक है, तो see if I click it light, what happen? Color panel appear. See यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कलर पैनल अपीयर हो रहा है, तो आई कैन चूज माई कलर फ्रॉम हियर. तो आप देखना टास्क बार, टाइटल बार का कलर क्या हो जाता है अगर हम क्लिक करते हैं, वो चेंज होने लगता है. ठीक है, एंड देखो वन मोर थिंग, कस्टम कलर पे अगर हम चेक क्लिक करते हैं, तो फ्रॉम हियर आई कैन, व्हाट आई कैन डू, फ्रॉम हियर आई कैन reduce the intensity or increase the intensity of my default color. ठीक है, तो I'll click on done. So what we have to do, first we have to go on, देखो यहाँ पे कुछ blue सा, अच्छा चलो let me change the color, let me click it this color. Okay, now if I'll go on custom, see यहाँ पे सारे colors change हो गए ना, तो now I want to reduce its intensity, and if I click on done, देखा, तो दिस इज द वे हाउ वी कैन चेंज द कलर. देखो अब यहाँ पे हमारा कलर कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे देखो आप, विंडोज स्क्रीन जो आती है वो किस कलर की होगी? जो कलर हमने सेट किया था, है ना. नाउ नेक्स्ट थिंग इज applying theme. Next that we have to read is how we can apply theme. Now instead of setting the desktop background, screen saver and color scheme individually, देखो इन सारे काम को अलग अलग करने से अच्छा है, we can set the theme. If we will set the theme, we can put all these things in at one place only. Now let us see. Open the personalization window. Scroll down to view the available theme. So we can scroll down to arrow theme or basic and high contrast theme. Let us see, do we have arrow theme here? We don't have arrow theme as far I can see. If I'll click on themes and related setting, so let us see what is there. Yes, from here we can set the themes, है ना. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? थीम सेट कर सकते हैं. अब डार्क रेड है तो कलर को हमने चेंज कर दिया, है ना. एंड सिमिलरली बैकग्राउंड स्लाइड शो 5 इमेज, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं. ओके,
नाउ इफ आई मिनिमाइज माई स्क्रीन, सी व्हाट वी विल सी। देखो हमने क्या कर दिया, अपने कलर को पूरा रेड कर दिया ना। हमने यहाँ से बैकग्राउंड इमेज हटा के हमने क्या किया, थीम, पूरी थीम रेड कर दी। ओके, नाउ डू यू नो, सो यहाँ पे एक और चीज है कि क्लिक ऑन क्रॉस वंस कंप्लीटेड। तो चलो हम भी क्रॉस पे क्लिक करते हैं बिकॉज वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड। तो हियर इज द क्लोज बटन, वी विल क्लिक ऑन क्लोज। Do you know a theme will include a whole range of change? A theme will include a whole range of changes such as a new background, taskbar, start menu। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो यहाँ पे टाइटल बार है वो किस कलर की हो गई है। वो कलर जो हमने सेट किया था उस कलर की हमारी हो गई है। Now adding gadget on the desktop. Now next thing that we have to read it, how we can add gadget in the desktop. Okay, so the next thing that we have to do is to add gadget. Now kids, before moving ahead, I would like to tell you that in Windows 10 gadget options are not available anymore. In Windows 10 gadget options are not available anymore, but still let us read how we can add gadget. You can make the Windows desktop more useful by adding gadget to it. A gadget is a small program such as a such as a clock or calculator that performs a specific function. You can also remove the gadget. Okay? तो गैजेट्स क्या होते हैं? गैजेट्स हमारे मोबाइल में भी होते हैं। दे हेल्प अस टू डू द सम स्पेसिफिक जॉब, है ना। वो हमें क्या हेल्प करते हैं? वो हमें हेल्प करते हैं कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए, जैसे कैलकुलेटर एंड दी कैलेंडर, दीज ऑल आर द गैजेट्स। नाउ राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। हाउ वी कैन ऐड गैजेट? राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, क्लिक ऑन गैजेट। ठीक है, राइट क्लिक पे राइट क्लिक करना था डेस्कटॉप पे, लेकिन फिर क्लिक करना था गैजेट पे। द गैजेट गैलरी विल अपीयर। व्हाट विल हैपन? गैजेट गैलरी विल अपीयर। आफ्टर द गैजेट गैलरी अपीयर्स, क्लिक ऑन गैजेट। देखो यहाँ पे अलग अलग तरह के गैजेट्स है ना, कैलेंडर, क्लॉक, सीपीयू, करेंसी, डिजिटल परसोना, है ना, पिक्चर पजल, स्लाइड शो, अलग अलग तरह की चीजें है ना। यू कैन क्लिक ऑन शो डिटेल्स टू सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गैजेट। देखो इधर क्या होता था, शो डिटेल का ऑप्शन आता था। यहाँ पे क्लिक करके आप क्या हो, यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या मिल सकता था? डिटेल्स मिल सकती हैं। नाउ नेक्स्ट इज right click the gadget if you want to add this gadget. Now if I want to add any gadget, I have, जैसे यहाँ पे इन्होंने CPU मीटर पे गई है। अब CPU मीटर पे जाके इन्होंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड एंड अनइंस्टॉल, है ना। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड एंड अनइंस्टॉल, एंड यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक ऑन द गैजेट। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे डेस्कटॉप पे CPU मीटर आ जाएगा। नाउ किड्स, एज आई हैव टोल्ड यू, gadgets are not available in Windows 10 anymore, but there are some apps that will help us to fulfill the requirement of all these things. ओके, जैसे कि कैलेंडर, क्लॉक, सीपीयू मीटर, डिजिटल परसोना, विंडोज मीडिया प्लेयर, दीज थिंग्स आर गैजेट। तो ऐसे कुछ एप्स विंडोज 10 पे हमें मिल जाएंगे। विंडोज 10 पे हमें एप्स मिल जाएंगे बट वी डोंट गेट गैजेट, हमें गैजेट नहीं मिल जाएंगे।
विंडोज 10 पे वी विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। देखो गैजेट्स का ऑप्शन जो था वो विंडोज 7 में था, बट नाउ इन विंडोज 10 ऐसा गैजेट्स का ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, बट इंस्टीड ऑफ गैजेट्स का ऑप्शन यहाँ पे हमें क्या मिलता है, गैजेट का ऑप्शन तो नहीं रहता, बट हमें क्या यहाँ पे मिलता है, अलग अलग एप्लीकेशन हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, चलो लेट अस सी। अब यहाँ पे तो हमने स्टेप्स देख लिया कि हाउ टू ऐड गैजेट। नाउ लेट अस सी विंडोज 10 में कैसे गैजेट्स होते। तो जस्ट व्हाट वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट। अब देखो जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, देखो हमारे, अब देखो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे आपने क्लॉक पढ़ा ना। अब देखो विंडोज 10 में हमारे पास क्या है, अलार्म एंड क्लॉक। तो अब हम क्या करेंगे, अलार्म एंड क्लॉक पे हमने टैप किया, अब हमारे स्क्रीन पे देखो अलार्म एंड क्लॉक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितने सारे ऑप्शन है, अलार्म, क्लॉक, टाइमर, स्टॉप वॉच। तो इफ आई गो ऑन क्लॉक, तो देखो यहाँ पे हमारे पास लोकल टाइम आ रहा है, जैसे इस टाइम 11:44 AM हो रहा है, आज थर्सडे 6/8/2020 है। एंड हमें किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम पता चल रहा है, ये हमारा इंडिया के अकॉर्डिंग हमें टाइम पता चला। इफ आई क्लिक हियर समवेयर, इज इट क्लिकेबल, नो, okay, what is this, add sign, add new clock? If I want, here I can add new clock. So to add new clock I have to click the location, किसी जगह की location। suppose if I type here Berlin, अगर मैं यहाँ पे बर्लिन टाइप करूँ तो बर्लिन जर्मनी का भी टाइम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हमें जरूरत क्यों पड़ेगी दो टाइम की, हमारा तो एक टाइम से काम हो जाएगा। बट सपोज आपके घर का कोई, आपका रिलेटिव या आपके फैमिली मेंबर कोई अगर बर्लिन गया हुआ है या बाहर कहीं गया हुआ है, तो वहां पे तो टाइम डिफरेंस आता है। तो टू मीट दैट टाइम डिफरेंस वी नीड टू एड वन मोर क्लॉक। ठीक है, क्लॉक देख लिया। अब नाउ हियर वी कैन सी टाइमर। अब यहाँ पे हम टाइमर लगा सकते हैं, यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। देखो काउंटडाउन स्टार्ट करते ही क्या हुआ, देखो एक्सपेंड करने पे ये इतना बड़ा सा हो गया है ना। एंड नाउ द स्टॉप वॉच। चलो स्टॉप वॉच भी देख लेते हैं। स्टॉप वॉच तो आप सब यूज करते होगे, है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा अलार्म, क्लॉक, टाइमर एंड स्टॉप वॉच। तो ये कि देखो विंडोज 7 में क्या है, विंडोज 7 में ये कोई गैजेट में नहीं, एक अलग से एप्लीकेशन में दिया। तो हमने एक अलार्म क्लॉक देख लिया। नेक्स्ट इज देखो कैलकुलेटर, वी कैन हैव कैलकुलेटर ऑल्सो हियर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे वी कैन कैलकुलेट इजीली, है ना। देखा, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हियर वी कैन कैलकुलेट इजीली। तो अब इसको हमें, अब इसको हमें कोई जरूरत नहीं है कि ये हम दोबारा से इसको हम दोबारा से आपके उसमें गैजेट्स में डालें। ये हम एक एप्लीकेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सी, नेक्स्ट इज कैलेंडर। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज कैलेंडर। अब यहाँ पे क्या होता है, लेट अस सी। अच्छा, गो टू कैलेंडर। ओके, देखो ये मुझे अगस्त मंथ का पूरा कैलेंडर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ना। ओके, so these are what, these are different gadgets or we can say application। अच्छा चलो एक बात लिखी है कि we can राइट क्लिक टू ऐड और इंस्टॉल इट। चलो करके देखते हैं कि देखो यहाँ पे एक फिल्म एंड टीवी करके भी है, जैसे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपने देखा था विंडोज मीडिया प्लेयर, तो यहाँ पे वो फिल्म एंड टीवी करके था। तो अच्छा चलो देखते हैं, इफ आई डू, देखो क्लॉक एंड अलार्म पे इफ आई डू द राइट क्लिक, not to open it but to right click only, देखो
पिन टू स्टार्ट एंड मोर। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ जा रहे हैं, है ना। ओके नाउ, तो यहाँ पे हमने देखा हाउ टू ऐड अ गैजेट। नाउ नेक्स्ट इज रिमूविंग अ गैजेट। How we can remove a gadget in Windows 7? How we can remove the gadget in Windows 7? Move the mouse pointer over the gadget. What we can do? We can move the mouse pointer over the गैजेट। ठीक है, जैसे हम कोई ऐप अनइंस्टॉल करते हैं ना, अपने फोन से कोई ऐप अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, उस ऐप पे जाते हैं, उस ऐप पे जब हम जाते हैं उसके बाद उसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, ऊपर क्रॉस का बटन आता है एंड फिर हम उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली वी कैन अनइंस्टॉल एनी गैजेट ऑल्सो। हमें क्या करना है, मूव द माउस पॉइंटर ओवर द गैजेट कंट्रोल्स अपीयर, click on the remove button, then what we have to do, then we have to click on the remove button। आपने फिर remove button पे click कर देना है। You can also right click the gadget and then click the close। right click gadget पे करके then आप close पे click कर सकते हो। Now here we have finished this chapter and this is time to do the self evaluation, so let us read it। First point, I know that the background image that appears on the desktop is called wallpaper। Yes, that is true। I know that the background image that appears on the desktop is called the wallpaper, so this line is correct। Next is, I know that by changing the background we can make desktop more beautiful। Yes, देखो, by changing the background we can make the desktop more beautiful। Okay, so we will click on tick। I know that desktop theme is used to change the color scheme, font size, effect of the desktop and other item present on it। Yes, desktop theme is used to change the color scheme, font size, effect and other items present on it, so this statement is also correct। Now next is, I know that a screensaver is an image that pop-ups on the screen every time when computer is idle for certain time। So again this is true, that स्क्रीन सेवर अपीयर जब हमारा कंप्यूटर कुछ देर के लिए काम नहीं करता, तो व्हाट हैपन, स्क्रीन सेवर्स अपीयर्स, है ना। So that line is also true। I know that the gadget is a small program such as clock or calculator that perform a specific function। ये तो अभी मैम ने आपको बताया that gadget is what? Gadget is what? स्मॉल प्रोग्राम जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम छोटे छोटे से कोई काम कर सकते हैं, दैट वी कैन यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, है ना। तो यस ट्रू, जैसे कि अभी मैम ने आपको बताया ना, मैम ने अभी आपको बताया कि देखो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी कैन कैलकुलेट। नाउ and with the help of this is what, this is calendar, this is with the help of calendar we can set any date or we can do stuff। देखो जब भी मैं किसी डेट पे क्लिक कर रही हूँ तो दे आर आस्किंग व्हाट इज द इवेंट नेम, है ना। यहाँ से आके मैं इमोजी भी चेंज कर सकती हूँ। सपोज मुझे ट्रैवल करना है तो आई विल क्लिक ऑन एरोप्लेन, तो अब मुझे याद रहेगा कि उस दिन मुझे क्या करना है, ट्रैवल करना है, उस दिन की मेरी फ्लाइट है। Okay kids, this is it for today।